निगमं अपहेया मत प्रतिजनं रतं आदिकर्तुम् अवप्लुते रथस्था धृतरथ चरणा अभ्या चलादुगत हरिरिव हेन्तु इवं गतोत्रया स्वानिगमा अपहया मत्प्रतिजना। जय श्री राधा विनोचन भगवान की जय। स्वानिगमा यानी कि अपन खुद का वचन, स्वानिगमा अपहया यानी कि विश्वदेव कह रहे हैं कि अपना वचन को अपहया त्याग दिया, भगवान अपना वचन को त्याग दिया। स्वानिगमा अपहयाम मत प्रतिजनम लेकिन मेरा वचनों को उसने परिपालन किया। मत प्रतिजना स्वानिगमं अपहया मत प्रतिजना रतमधिकर्तो अवप्लोते रतस्था धृताचरणं धृतारक्तचरणं अभ्याचलादुगा हरिरिव हेन्तु। हेन्तु मतलब हत्या करने के लिए भगवान स्वयं उतर कर और एक रथ उठा लिया, विश्वदेव के तौर दौड़ रहे उसको मारने के लिए। हेन्तु मतलब हत्या करने के लिए। हरिरिव हेन्तु इवं गतोत्रया। इवं मतलब हाथी, जैसे बताया गया है एक शेर जाता है हाथी को मारने के लिए, ऐसे हमारे गोविंद रथ हाथ में लेकर और दौड़ रहे हैं। हरिर मतलब यहाँ पर हरिर दो शब्द, हरि मतलब हरि भी बोल रहे हैं, हरिर मतलब लाइन, एक लाइन जा रहा है इसको मारने के लिए, हाथी को मारने के लिए। हरिरिवा हेन्तु हरिरिवा हेन्तु इवं गतोत्रया। तो एक एक शब्द हम लोग पकड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्वानिगमा अपहया मत प्रतिजना स्वानिगमा अपहया मत प्रतिजना रतम आदिकर्तुम् अवप्लोते रथस्था। यह अवप्लोते मतलब उतर गए और दौड़ कर देखा पहिया पड़ा रहा, पहिया को हाथ में उठा लिया। और धृतारथ चरण पहिया, चरण मतलब उसका चलना और उसको उठाकर धृतारथ चरण अभ्याचलादुगा अभ्यक मतलब हरि एकदम निपुणता से और जल्दी करते हुए दौड़ रहा है रथ लेकर। क्या करने के लिए बताया गया है? हरिरिव हेन्तु। हरि मतलब एक शेर दौड़ रहा है मारने के लिए। किसको मारने के लिए? इवं गतोत्रया। एक शेर दौड़ रहा है मारने के लिए। चलते ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। स्वानिगमा Om truthfulness.
Apahaya for nullifying. Mata pratijana, my own promise. Ratam, factual. Adi, moha. Kartum, for doing it. Avaplote, getting down. Ratasta, from the chariot. Drita, taking up. Rata, chariot. Charana, wheel. Abhyat, went hurriedly. Chala, trembling. The earth, Hare, line. Kiva, line. Entum, to kill. Imam, elephant. Gata, leaving aside. Uttreya, covering cloth. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki, fulfilling my desire and sacrificing his own promise. He got down from the chariot, took up his wheel, and ran towards me hurriedly, just as a lion going to kill an elephant. He even dropped his own outer garment on the way. Prepared by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. The battle of Kurukshetra was fought on the military principles, but at the same time, in a sporting spirit, like a friend, fight with another friend. Duryodhana criticized Bhishmadev, alleging that he was reluctant to kill Arjuna because of parental affection. A Kshatriya cannot tolerate insults on the principles of fighting. Bhishmadev therefore promised that the next day he will kill all 5 Pandavas with a special weapon made from the peppers. Duryodhana was satisfied and he kept the arrows with him to be delivered the next day during the fight. By tricks, Arjuna took the arrows from Duryodhana, and Bhishmadev could understand that this was the trick of Lord Krishna. So he took the vow that the next day Krishna would have to take up the weapon himself. Otherwise, his friend Arjuna would die. In the next day's fighting, Bhishmadev fought so violently that both Arjuna and Krishna were in trouble. Arjuna was almost defeated. The situation was so intense that he was about to be killed by Bhishmadev. The very next moment, at that time, Lord Krishna wanted to please his devotee Bhishma by keeping his promise, because he was more important than his own. Seemingly, he broke his own promise. He promised before the beginning of the battle Kurukshetra that he would remain without weapon and he would not use his strength for either of the purpose. But to protect Arjuna, he got down from the chariot, took up the wheel of the chariot and hurriedly rushed to Bhishmadev. In an angry mood, as a lion goes to kill an elephant, he dropped the covering cloth on his way. And out of great anger, he didn't know that he had dropped it. Bhishmadeva at once gave up the weapon and stood to be killed by Krishna, his beloved Lord. The fighting of the day was thus ended at that very moment, and Arjuna was saved. Of course, there was no possibility of Arjuna's death, because the Lord himself was on the chariot. But because Bhishmadev wanted to see the Lord Krishna take up the weapon to save his friend, the Lord created the situation making Arjuna death imminent. He stood before Bhishmadev to show him that the promise was fulfilled and that he had taken up the wheel. Prabhupada ki jai. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srivadevamal Krishna Goswami Iti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharani Nirvisesu Sunyavadi Pashita Sadharani. Vishma Stuti ki jai. ये श्रीमद् भागवतम का शुरुआत पहला कैंटो है और इसमें भीष्मदेव जैसा महान भक्तों की बताया गया है, उनकी स्तुतियां हैं। और साथ साथ में इससे पहले आप देखेंगे माता कुंती की स्तुतियां हैं। तो आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम इज अ ब्यूटीफुल ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम गॉड एंड हिज प्योर डिवोटीज। ये भागवत क्या है? भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की देव कथा है।
और इसको जितना हम इसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उतना हमारे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगा, भक्तों के प्रति भी बताया गया है, रुचि भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर बताया गया है, ये स्तुति जो है बहुत सुंदर स्तुति है। इति मतिरूपकल्पिता कृष्ण भगवते सत्पदा पुंगवे भूमि सुसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति उप्यसे भाव प्रभावा ऋग्वेन कमलं कमलवर्णं रविकरगौरवरं ददामि वपुरलाककुलवर्तमावचं विजसकरतिरस्तु मे अनबाध्यया युधि पुराङ्गरजो विक्रम विश्वे कचललितश्रमवैर्यलङ्कृतस्य मम निस्ताशरे विविद्यमाना त्वचे विलास त्वचे अस्तु कृष्णात्मा सपादि सखिवाचो निसंयमाद्ये निज बलयोर निरक्षया स्थितवती पार्थ सखे स्थितवती पार्थ सेनकयोरक्षणा स्थितवती पार्थ सखे रतुर्ममस्तु व्यव्याहिता प्रथना मुखं निरक्षया स्व जनावदद्विमुखस्य दोषबुद्धये कुमति हरत आत्मविदाययश्चरणरति परमस्य तस्य मस्तु। और इस पर आ रहे हैं हम लोग, और इस स्थिति में भगवान के स्वानिग्मा अपहया मत प्रतिजना मत रतमादिकर्तुमवप्लोते रतास्तावृतारत्तचरणो अभ्याचला दुगन हरिदिवहन्तु इमं गतोत्रया। और 4 श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये, इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। और इस विशेष श्लोक में वर्णन किया गया कि भगवान बताया गया, भीष्म देव ये स्तुति कर रहे थे और वो भगवान से कह रहे हैं, प्रभु तुमने स्वानिग्मा अपहया, अपना वचन को टाल दिया, और मत प्रतिजनम, मेरा प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान का प्रतिज्ञा क्या था? भगवान का प्रतिज्ञा था कि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊं, मैं अपना शक्ति जो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो है, मैं वो दिखाऊंगा नहीं, मैं उसको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, कोई के पक्ष नहीं लूंगा। और आप सभी लोग जानते हैं, अर्जुन महाभारत के लड़ाई से पहले अर्जुन और बताया कि दुर्योधन दोनों द्वारका गए थे, और जब दोनों गए थे द्वारका, और ताकि कृष्णा के पास नारायणी सेना है, तो नारायणी सेना को मारने के लिए वास्तविक में दुर्योधन भी गया था और अर्जुन भी गया था। और जब दोनों वहां पहुंचे तो उस समय कृष्ण भगवान सो रहे, तो जब सो रहे थे बताया गया है उस समय दुर्योधन पहले पहुंचा। और दुर्योधन जब पहुंचा, क्योंकि दुर्योधन कृष्ण का भक्त भी नहीं है, और हमेशा बताया गया है, आप सभी लोग जानते हैं दुर्योधन का विशेषतापन यही था, वो भगवान से हमेशा चिड़चिड़ा रहते थे। कारण ये है क्योंकि वो पांडवों के तरफ हमेशा रहते। लेकिन दुर्योधन जब वहां पहुंचते हैं तो कृष्ण भगवान के सर के बल खड़ा हो जाता। उसके बाद में अर्जुन आया, और अर्जुन जब आया, कृष्ण सो रहे थे तो उसके चरण के पास गए, और कृष्ण भगवान जब जान गए कि अर्जुन आया, और जानता है भगवान तो हर प्राणी के हृदय में विराजमान है। गीता में भगवान कहते सर्वस्व चाह हृदय सरमिष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम, जब उससे कुछ स्मृति आता है, भूलना आता है। हमारा कहना जब जाता है एग्जाम करने के लिए, कुछ याद करता है ना तो लिख देता है, जो चीज भूल जाता है पीछे बोल तुम लिख देना। तो वो कहां से आता है? वो रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस कम्स फ्रॉम श्री कृष्णा, कम्स फ्रॉम श्री कृष्णा। वो सबके हृदय में बैठा। तो और जैसे अर्जुन आया तो भगवान ने अपना नेत्र खोला, तो किसको देखा पहले? अर्जुन। तो अर्जुन से क्या बोला कि अर्जुन बाहर तुम कैसे आया हो? तो दुर्योधन कहने लगा कृष्ण मैं पहले आया हूं। उसने बोला पर मैंने तो अर्जुन को पहले देखा। तो फिर भी बोला आप लोग क्यों आए हो? तो बताने लगा महाभारत, अब युद्ध होगा, और युद्ध होने से पहले हे कृष्ण हम लोग आए आपसे मांगने के लिए
आपके पास नारायणी सेना है, तो आप कृपया करके किसके तरफ देंगे, आप निर्णय कीजिए। तो कन्हैया शुरुआत में निर्णय कर देता है कि मेरे पास नारायणी सेना, और जिसके तरफ नारायणी सेना जाता है उसको कोई पराजित करने वाला नहीं। तो दुर्योधन का अभिलाषा तो यही रहा, नारायणी सेना मिले, लेकिन कृष्ण ने बताया गया अपना प्रस्ताव धरा, एक तरफ देखो मैं रहूंगा नियत तक, और दूसरा तरफ मेरी नारायणी सेना, आप जिसको चाहते हो वो चुन। तो लेकिन मैंने अर्जुन को पहले देखा, अर्जुन आप क्या चाहते हैं? तो अर्जुन ने तुरंत निर्णय कर दिया कि केशव मैं नारायणी सेना के लिए नहीं आया हूं, मुझे सिर्फ आप चाहिए और आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन के हृदय में तो दिल्ली का लड्डू फूट गया, क्योंकि ये तो लड़ेगा नहीं, खाली बात करते रह जाता। अरे भगवान के बात में भी भैया सब शक्ति भरा है, इसलिए ये बात जानना बड़ा आवश्यक है। और तुरंत दुर्योधन मुंह लटकाते हुए कहने लगा, तो ठीक है कृष्ण मुझे नारायणी सेना दे दो। और कन्हैया तो उसके हृदय के बात जानता है, ये नारायणी सेना मांगे। तो भगवान से हम लोग क्या चाहते हैं, अर्जुन से सीखना। भगवान से हम लोग भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं? भगवान को चाहते कि भगवान से चाहते? रामचरितमानस के आधार पर सीता मैया ने राम से चाहा, वो भी माया सीता थी, उसने राम से चाहा कि मुझे सोने के हिर मिलाओ। राम को नहीं चाहती, राम से चाहती। 99% ऑफ लोग कलयुग का भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। संसार बताया गया है वो स्वाध्याय बनाया, भगवान साधन कर दिया, जबकि शास्त्र कहते हैं भगवान वहां स्वाध्याय है। भजन साधन कर भगवान को चाहिए। कलयुग के प्राणी भगवान से संसार को चाहते हैं, बस यही अंतर है। भगवान उनका साधन नहीं है, भगवान साधन बन गया है कि उस संसार में, जबकि संसार एक साधन होना चाहिए कि हमें भगवान मिले, बस यही अंतर रह जाता है। तभी भक्त जो रहते भगवान के पास आकर एक ही चीज बोलते हैं, भगवान मुझे आप चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से ज्ञान हमारे में आता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम इज द ओनली मीन्स टू लव गॉड। टू बी अ लवर ऑफ गॉड यू हैव टू हियर श्रीमद् भागवत। जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे हम उसके लवर नहीं बन पाएंगे। एंड लवर मीन्स वी बिकम लाइक ए मैड मैन, पागलपंती चढ़ जाए। जैसे लोग धन कमाने में कितना पागल हो जाते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। एक लड़की को शादी करने के लिए भले महाराज यहाँ से पूरे इंडिया के शादी करेंगे, मुझे संगे लेगी तुम शादी करो, तो बोलने का प्रयास, एक पागलपंती चढ़ जाता है, मुझे ये चाहिए तो बस ऐसा एक पागलपंती इधर अगर हो जाए तो जीवन निहाल हो जाए। तो बोलने का प्रयास यही रह जाता है। एंड दिस विल ओनली कम बाय हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ सुप्रीम गॉड। क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम बताया गया है पंचम पुरुषार्थ, प्रेम कुमार को महान, गोविंद से प्रेम कराएगा। तो क्या हुआ आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान ने विशेषता पूर्वक अर्जुन को कहा कि ठीक है अर्जुन कि मैं, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं कहूंगा, ये भगवान का वचन है। और दुर्योधन मुंह लटका कर अंदर तो आनंद से भर गए कि आप कौरवों को कोई हराने वाला नहीं। एक तिलुम 5 और ऊपर से निहत्ता कृष्ण। और चला गया तो दुर्योधन ने चलाने के बाद में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हार तेरा निश्चित है और हरदम रहोगे उदास। मक्खन ले गया दुर्योधन और जहाज ले गया तेरे पास। और अर्जुन सुनने के बाद में देखो, दिस इज शरणागति का मतलब है 6 चीज। अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जन, रक्षति विश्वासो, गोपीतृत्व वरम यदा। और अंत में बताया आत्मा निक्षेपन कर्पण्या, सद्विधि शरणागति। शरणागति में यू मस्ट हैव फुल कॉन्फिडेंस, कृष्णा रक्षति विश्वासो। मैं मर जाऊंगा, मेरा कन्हैया मेरा रक्षक है, रहा है और रहेगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको भक्ति करना है। और ये कॉन्फिडेंस है नो डाउट
अगर उसमें डाउट आ गया तो कन्हैया बोले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। When you surrender, that means you surrender. कायेन वाचा मनसेंद्रियाय बुद्धि आत्मा मनुस्मृता स्वभाव यद यद करोति सकल में परस्पर नारायण समर्पति है। जब नारायण को शरणागत हो जाते किसी भी स्थिति वातावरण में हमें पता गया संदेह नहीं होना चाहिए। नो डाउट आप अगर कुकिंग कर रहे हो नो डाउट ये सबसे बढ़िया रहेगा, जो खाएगा चिल्ला के जाएगा और बोल के जाएगा हरी हरी बोल। आप मीटिंग रूम में हो नो डाउट, आप अपने कार कर रहे हो नो डाउट ये सक्सेस होगा। सो विद दैट रक्षति विश्वास, तो सभी लोग बोले यू मस्ट हैव रक्षति अनुकूल ऐसा संकल्प, ये संकल्प जो कन्हैया ने जो चाहा मैं वैसा ही करूं। प्रतिकूल ऐसा वर्जन जो भगवान के विरुद्ध है मैं उसको नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। और रक्षति विश्वास हो, मुझे पूरा विश्वास है गोपी तृत्व वरवेदा, ही इज माय गार्डियन, ही इज माय प्रोटेक्टर, ये मेरा सब कुछ है, सर्वस्व है। और आत्मा निक्षेपण कर्पण्य मीक एंड हम्बल ये सब होना चाहिए, बट विद मीक एंड हम्बलनेस, एक विनम्रता के साथ में सद्विधि शरणागत, इसी को शरणागत है। और कृष्ण भगवान उसको परीक्षा लेने के लिए शरणागत, अब भगवान उसको कह रहे अर्जुन हार तेरा निश्चित है और हरदम रहोगे उदास, मक्खन लेके दुर्योधन जहाज रहेगा तेरे पास। Now look at the confidence of Arjuna. इसे और उसने क्या सुंदर उत्तर दिया, बोले कृष्ण भक्त का हार कभी होता नहीं है, कृष्ण भक्त कभी उदास नहीं रहता है और हार उसका, और उसको बताया कि जीत उसका निश्चित है। और मक्खन लेकर दुर्योधन करेगा मक्खन चोर मेरे पास है, तो बोलने का प्रयास नहीं कि दिस इज टोटल सरेंडर ऑफ अर्जुन, that he wants Krishna। क्योंकि भगवान एक परीक्षा लेता है भक्त का, वो संसार बनाया है और कैसे बना माया से, तो उन्हीं कंट्रोल करे, माया इज कंट्रोल। नाउ द चॉइस इज आवर्स, माया को भजे सब कोई माधो को भजे ना कोई, जो माधो को भजे तो माया काय होए। हम माया को पकड़ लिए और माया जो है वो हमें सिर्फ मोह में डाल रहा, मोह में डाल रहा, फंसा रहा। और माया बड़ी चतुर है, वो इतना प्रकाशमान चंचलायमान करेगा और मन उसको देखने के बाद में उलझ जाएगा, मुझे उसको चाहिए, मुझे उसको भोग करना। भोगे भागवत के गीता कहते कि जो प्राणी भोग करता है भोगो स्वर्ण प्रसक्तम दायरमुच्चे व्यास आत्मिका बुद्धि समोदो न विधीयता, बुद्धि स्थिर नहीं रही, भोग वासना उसके बुद्धि के पतन कर दी। इसलिए जिसका मन रेजुलेट है या व्यास आत्मिका बुद्धि एकाई पूर्णन, ओनली अ रेजुलेट माइंड विल अटेन मी, इरेजुलेट माइंड विल नेवर अटेन मी। मन जब बताएगा बुद्धि स्थिर है तब तुम अपने आप को देख सकोगे। चंचलाए मन, चंचलाए पानी, चटियान पानी, तुम अपन चेहरा नहीं देख पाओगे। ऐसे मन के मलिनता, मन के चंचलता, तुम ना अपने आप को अनुभूति करोगे ना कन्हैया की अनुभूति कर पाओगे। इसलिए अर्जुन बताया गया उस स्थिति पे है जहां आज भगवान से कह रहा है कि हे कृष्ण मुझे आप चाहिए। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध हुआ तो विशेषता पूर्वक आप सभी लोग जानते कि उस तरफ बताया गया है 11 अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी में कितना हजार रथ, कितना हजार हाथी, कितना सिपाही अनगिनत, एक खाली बताया अक्षौणी, 1 अक्षौणी, so many सिपाही। और इधर भी कम थी, उधर इतना ज्यादा, उधर से 100 भाई, इधर से 5 और इधर से निहत्ता कृष्ण। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान से शास्त्र में कहा गया है कि कृष्ण भगवान अर्जुन का सारथी, और यहां पर बताया गया भगवान अपना प्रतिज्ञा त्याग किया और भक्त का प्रतिज्ञा को परिपूर्ण किया।
वो भगवान तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् है, जो पूर्ण रूप से उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। He is a order giver। लेकिन आज यहाँ देखा जाए भीष्म पितामह आज रो रहे हैं कि आज वो परमात्मा जो ऑर्डर गिवर है, जिसके साथ 5 रिश्ता, शांत भाव, दास भाव, सात्य भाव, वत्सल्य भाव और मधुर्य भाव, और आज पितामह इससे पहले वो रो रहा है। सपादि सखी वाचो निसम्य माध्ये। सपादि मतलब ये बैटलफील्ड में सखी वाचो अपने मित्र के वचन पूरा कर रहे थे, अपने मित्र के रथ हाँक रहे थे, खाली रथ हाँक नहीं रहे थे। सखी वाचो निसम्य माध्ये, पूरा रथ के बीच में ले जा खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद में क्या, स्वां जना बादल विमुखस्य, बताया गया है शास्त्र में, स्वजना बताया गया है, जो उनके जितने लोग आए थे भगवान ने तुरंत बताया गया है एक विशेष सीतावती पार्थ सेनुक आयु अक्षना। भगवान ने खाली अपना दृष्टि दौड़ाया, अक्षना मीन्स आइज। भगवान ने खाली अपना दृष्टि दौड़ाया, जो बताया गया है विरोधी दल के जितना सेना उनके आयु घटा दिया। भगवान ने सिर्फ अपना नेत्रों से उनका आयु घटा दिया, यानी कि अर्जुन doesn't have to do anything. Krishna is there because he surrendered to me. Now you don't have to worry, I will take over everything. इसलिए हितवता पार्थ सके रतेर्मस्तु। भीष्म पितामह कहते ये श्लोक से पहले, वो कह रहे हितवता, उनके प्राण हर लिया। तो कोई बोलेगा भगवान कितना पार्शियल है, पक्षपाती है। नहीं, भगवान कहता मैं पक्षपाती नहीं हूं, समम सर्वभूतेषु नाम देवस्ति प्रिया। मैं एक समान हूं, कोई प्रिय नहीं, कोई के शत्रु भी नहीं। अरे तो तुमने आयु से हर लिया, लोग बोले वैसे भी घरे तो मरत, लेकिन यहाँ पर हमें देख के बड़ी लोग सब भगवान वैकुंठ धाम चाहिए, हम तो कल्याण करे आया है। इन सबको मैं क्या करने आया हूँ? If they see Lord when they are dying on the Purichai, they are all going back to वैकुंठ। भगवान के दर्शन करते हुए कोई भी प्राण छोड़ी। अच्छा ये लोग अगर घरे मरत था, पता नहीं कितने देख के मरत, तब लोग वैकुंठ हो जाते। तो भगवान ने इनके ऊपर कृपा की, क्या की? कृपा की। और शास्त्रों में बताया गया दोनों के दल जब खड़ा हो गए तो ये लोग घर से दूर जी, दिल्ली में रहते हैं लेकिन कुरुक्षेत्र पे आया, so another 2.5 hours away from their house। प्रजावासी नहीं चाहिए, खाली सैनिक लोग चाहिए। और जो राजा लोग हैं, you have to be in the front line। अभी ऐसा नहीं होगा, राजा लोग घर में सोई, वो अपन घर में भूखो गए, हाँ सैनिक तुम लोग जाओ लड़ो, ट्रम्प खाली उठा दे, जाओ लड़ो, और किसको? ईरान को मार डालो। अपनी ट्रम्प बैठा है, हाँ मैग्नम का है, वो नहीं रहेगी। लेकिन उस समय पहले ऐसा नहीं था, पहले क्षत्रिय सबसे आगे, सैनिक लोग पीछे। और शास्त्र में ये भी वर्णन किया गया, प्रजा अपना 1/4 ऑफ द इनकम वो राजा की दी, ताकि राजा सबको भरपूर करे, भोजन पानी एवरीथिंग। सुबह खिचड़ी होना चाहिए, 12 बजे लंका घाटिया होना चाहिए, सज्जा के पनीर होना चाहिए। सो प्रजा, बिकॉज प्रजा एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इन दिस फाइट, दे हैव टू गिव देयर 1/4 ऑफ द इनकम, एंड देन द फाइट इज गोइंग टू हैपन। तो विशेषता पूर्वक आप सभी लोग जानते हैं कि विश्वदेव इस श्लोक से पहले भी वो रो रहे थे कि मैं जब बाण मार रहा था, मैंने कृष्ण को बताया गया, उसको शरीर में बताया गया छिद्र करते हुए उसके लहू लुहान कर दिया था। लेकिन क्योंकि भीष्म पितामह इज अ वॉरियर, तो वॉरियर जब बाण मारे भगवान के लिए वो फूल भीग रहा है, क्योंकि वॉरियर नोज ओनली द हाउ टू, बोले अपने ऐसे बाण चला जाए। तो वॉरियर के लिए इट्स लाइक अ फ्लोइंग ऑफ फ्लावर्स। जैसे एक लवर है, वैलेंटाइन डे पे वो तुरंत महाराम अपने तुरंत बताया गया है, रोज ले जाके अपन वैलेंटाइन के दे, प्लीज दिस इज माय रोज, दिस इज माय हार्ट। तो
क्योंकि लेकिन क्षत्रिय अपन प्रेमी के क्या करी, बाण से वार करी, भगवान उसको स्वीकार कर रहे थे। जैसे शास्त्र में भी वर्णन किया गया है, इफ लवर वो अपने बिलावट को अगर काटेगा तो उसको गुस्सा नहीं लगेगा, वो कितना अच्छा है, वो मुझको काट रहा है। ऐसे ही बताया गया है भीष्म पितामह, when he throws the arrows to Krishna, it is just like a lover throwing his love towards me, and Bhagwan was relishing that. तो भीष्म पितामह जैसा वोरिया कृष्ण को कहाँ मिले, and Krishna is enjoying that. लेकिन as Krishna has promised that he is not going to take the weapon, और as a क्षत्रिय जो रहती है वो लोग इंसल्ट नहीं रह पाते, स्पेशली when it's a talk about fighting, कि तुम पक्षपाती हो। और दुर्योधन ने ललकार किया, this is the 9th day, और कहा तुमने कृष्ण अर्जुन को तुम्हारा प्रिय है, तुम उसके ऊपर आज हमारा 5 बाणों वही रकम में एक नहीं मरा, हमारे कितने भाई मर गए, तुम पक्षपाती हो, हमारे खाते हो। तो पितामह को बहुत क्रोध आया, तो उसने क्या किया, उसने ये भी कह दिया कि तुम विशेषता तुम सोचते हो कि मैं उनके मानने नहीं चाहता हूं, तो अपने बीवी को भेजना, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती कह दूंगा। और जब मैं विष्णु सहस्त्र नाम जपन करके 12 बजे रात में उठूंगा, दुर्योधन was so happy, और ये 5 बाण ले जाओ, ये 5 बाण मैं तुझे दे रहा हूं, ये 5 का मैं ध्यान हत्या कर दूंगा। और तुरंत उसको दिया गया। कृष्ण को मालूम है सब कुछ क्या हो रहा है। तो भगवान ने पहले कैसे अर्जुन को बुलाया, अर्जुन एक बार तुम लोग जब वनवास में थे याद है, बोले हाँ, और उस समय दुर्योधन आया था तुम लोग के और सताए के लिए, लेकिन उस समय एक नदी में अप्सरा लोग गंधर्व लोग स्नान कर रहे थे, और दुर्योधन के तो कुमति बुद्धि है, और उस गंधर्व लोग के साथ वो अनुचित कार्य करने लगा, तो सब गंधर्व लोग पकड़ के ले जाने लगा दुर्योधन। जब ले जाने लगा तो उस समय क्या हुआ, पाता लगा इनके शिखर में, उस समय वनवासी थे, कि दुर्योधन को गंधर्व लोग पकड़ ली। भीम को इतना अच्छा लगा, भीम बोला और उसकी धुलाई करते ले जाओ, उसकी पीटो, भीम वाज सो हैप्पी। लेकिन युधिष्ठिर जब सुनी, उसने बोला दुर्योधन, उसने बोला अर्जुन तुम अभी जाओ, तुम और भीम, और दुर्योधन के अभी बचाओ। बोला भैया वो हमें क्या नहीं किया। उसने बोला ये घर के बात है, जब घर के बात है we have to stay as a family। जब बाहर के लोग घर में आक्रमण करते तो एक होकर उसको पराजित करना चाहिए। इसलिए this is how युधिष्ठिर was, सच्चा धर्मात्मा। और उसने तुरंत कहा घर के बाद में एकता लाओ, जब घर में लड़ाई हुए एकता लाओ, बाहर जब लड़ाई जब होते हैं ना तब तुरंत घर में सब एकता हो जाए, ताकि हम उसको पराजय कर सकें। कृष्ण कॉन्शियस शुड बी लाइक we should always unite together, because there's always a fight between the material people, and in terms of they're trying to enjoy sense gratification, the devotees doesn't want to enjoy, they want to give all the happiness whatever they have towards Krishna। तो devotees should always get together, जितने हम लोग एकता मांगे उतने मजबूत भी रहेंगे, और लक्ष्य भूलना नहीं कि हमें माया को पराजय करके गोविंद को पाना। So one devotee should help the other devotee to defeat Maya, illusion, rather than to fight yourself. This is stupidness. So we learn from Yudhishthira। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को कहा कि जाओ अभी छोड़ाएगा, और लोग गए तुरंत अर्जुन के पास तो अस्त्र शस्त्र से पराजय कर जय श्री श्री राधा वृंदावन भगवान की, और पराजय कर दुर्योधन को छोड़ाया। दुर्योधन was so embarrassed कि आज मैं जिसको इतना नीचा दिखाने के लिए आया था कि लोग और गिर जाए, आज ये लोग हमारा जान बचाए। तो दुर्योधन ने उसमें कहा अर्जुन कभी तुम्हें कोई चीज की आवश्यकता नहीं मुझसे मांगो। तो कृष्ण knows everything। से बोला अर्जुन
दुर्योधन ने तुम्हें वो कुछ वचन दिया था कुछ मांगने को? हाँ, बोले उसके पास 5 बाण है भीम का, विष्णुदेव का, तुम जाओ अभी मांग क्या बस। क्योंकि कृष्ण जानता है 5 बाण अभी इनकी हत्या हुई। और दुर्योधन अर्जुना को उसके शिकार और गए इन आफ्टरनून, एवरीबॉडी वाज सो म्यूचुअल। ऐसे अर्जुन क्यों आए हो मेरे शिकार? आपने मुझसे कहा था, मैंने आपके जान बचाया था, याद है? एनी बिकेम अगेन एम्बरेस। हाँ याद है, आपने बोला था मुझसे कुछ मांग लेने, मैंने उस समय नहीं मांगा था, अभी मांग लो। आपके जो विश्व पितामह 5 बाण दी जो मैंने दो। सो कृष्ण नलिफाइड दैट। और भानुमति के लिए द्रौपदी को उठाई रात में। उस समय पांडव सो गए थे और द्रौपदी कहा तुम उठो मेरे साथ। द्रौपदी बोला कहाँ जा रही हो? बोला बात करे समय नहीं है, सब सो रहा। तो उसके चप्पल आवाज कर रहा था, कन्हैया ने उसके पादुका को ले लिया अपने हाथ में और आगे चल रहा है और पीछे पीछे द्रौपदी। बोले कृष्णा कहाँ जा रही है? बोले अभी बात करेंगे, पांडव जग जाएंगे, दिन भर ये लोग कितने मेहनत करते हैं, युद्ध हो रहा है, इसलिए भी बात नहीं। और जब भीष्म पितामह बोली तो पितामह शिकर है। हाँ बोले और आप अंदर जाना, अपना पल्लू नीचे, और पितामह कुछ आशीर्वाद दे, चुप आशीर्वाद लेकर आ जाना, कुछ बोलना नहीं। शायद पितामह को पता लग जाए कि द्रौपदी है तो तुमसे एक प्रश्न पूछे, तुम यहाँ आया कैसे, तुम्हें कौन लाई? तो उस समय तुम बोलना कि मैं एक सिपाही के साथ आया। अरे कभी में तुम सिपाही कहाँ आए? मैं कैसे बोल सकता हूँ सिपाही के साथ? पंचाली बात मानो। पंचाली आगे के पितामह 12 गुजरात विष्णु सहस्त्र नाम सब आपकी बात में जैसे उल्टा जैसे घूमा तो देखा वहां पर एक स्त्री खड़ी है। तो उसने सोचा भानुमति से बोला खंड सौभाग्यवती। द्रौपदी तो अंदर से खुशी मारे पागल हो गई, क्योंकि पितामह भी कसम का इस 5 का हत्या करूंगा, मैं तो विधवा हो जाती। अभी यही पितामह कह रहा है अखंड, इतना आनंदित हो गए, पल्लू ऊपर कर पितामह धन्य। पितामह भी घबरा गया कि पंचाली तुम यहाँ क्या कर रही हो? पंचाली घबरा कि कृष्णा ने इसको बताया किसके साथ में तुम आए, किसके साथ में आए? अभी कैसे बोले सिपाही, वो द्वारका नाथ के साथ आए। तो पितामह ने प्रण कर लिया ये सब कृष्ण कर रहा है और कहा कि मैं संतनु का सुत नहीं, गंगा मेरी जननी नहीं। अगर मैं विषम बताया गया ज्ञान मैं कृष्ण के हरि के हाथ में अस्त्र शस्त्र ना उठा दूं, मैं संतनु का बेटा नहीं। गंगा आप सभी लोग जानते हैं वो संतनु का बेटा था और गंगा देवी का बेटा, इसका नाम था देवव्रता। और वही गंगा मैया शादी तो किए थे संतनु के साथ, लेकिन उसने व्रत लिया था मैं जो कुछ करूंगी मुझे रोकना नहीं। उसने 7 बच्चा लोग ले जाकर डुबा दिया था और जब 8वां बेटा ले जाकर डुबा था तो संतनु नहीं रोक रहे। तुम क्या करे, तुम माई हो, क्यों इनको तुम हत्या कर रहे हो? तो कहा कि नहीं वासु, ये लोग वासु लोग थे, 8 वासु, और उसमें से एक प्रभास नाम के वासु ने बताया गया है वशिष्ठ के गाय नंदिनी जो कामधेनु की बिटिया है उसके हरण कर लिया। तो वशिष्ठ ने शराब दिया कि ये वासु लोग सब मिलके करिश्मा कि इनका मृत्यु लोक में जन्म हो, सब आए माफी मांगने। तो कहा तुम्हारा जन्म भले होगा, जन्म लेते तुम्हारा माँ तुम लोग की हत्या करी, तुम लोग का उद्धार हो जाए। लेकिन जिसने मेरा गाय को खोला था प्रभास, उसके यहाँ निरंतर लंबी अवधि के समय तक यहाँ रहेगा। तो उसने जब कह दिया वही विषम पितामह वासु है, तो गंगा मैया ने सबको उद्धार किए थे। तो आज वही विश्व ने बताया गया। और फिर संतनु जब गंगा चली गई, अंतर ध्यान हो गई और यही विष्णुदेव गंगा मैया ले गई देवव्रत देवताओं के अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर लाकर वापस संतनु को दिया। फिर यही संतनु ने आगे चलकर सत्यावती से शादी किया, लेकिन शादी हो नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? कारण था। कारण क्या था? कारण ये था कि सत्यवती बताया उसके पापा ने बोला कि तुम्हारे पास पहले से बेटा वो राजगद्दी बैठी,
इसलिए मैं शादी कभी नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे वचन दो कि मेरा बेटी का लड़का वो गद्दी बैठी तब मैं शादी करूं। अब ये ऐसे कर नहीं सकता। अब बेचारा खोया खोया गुमसुम पागल की तरह ना शादी कर सकता है ना वचन दे सकता है। तो भीष्म पितामह उत्तम चिंतित कुरियन, उत्तम पुत्र कौन है? जो माता पिता की हृदय के बात जानकर काम करता। और तुरंत पता लगाया तो भीष्म पितामह ने जाकर बताया सत्यवती के माता पिता को कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। उसने बोला तुम भले नहीं बनोगे, तुम्हारा बेटा होगा वो तो बनेगा। उसने कहा मैं प्रतिज्ञा लेता हूं मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा। आई विल बी खंड ब्रह्मचारी एंड द पेरेंट्स विल सो हैप्पी। तो लेकिन ये बात जब शंतनु को पता लगा कि मेरा बेटा मेरा खुशी के लिए अपना जीवन बलिदान दिया, तो उसने कहा मैं आज वचन दे रहा हूं कि तुम्हारे पास इच्छा मृत्यु वरदान। और उसने जो वचन लिया था तभी नाम पड़ा भीष्म। इतना गंभीर प्रतिज्ञा, तभी नाम भीष्म पड़ा। वरना उसके नाम देवव्रत था, पितामह था, और उसको बताया गया है भीष्म बोला गया ज्यादातर से। तो विशेषता पूर्वक आज यहाँ पर भगवान को उसने कह दिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा। और उसने जब युद्ध किया अर्जुन के साथ तो बहुत घमाशाई था, बहुत भयानक युद्ध था। और अर्जुन को घायल भी कर दिया, रथ भी पड़ा नीचे, तो रथ भी टूट गया। और तब कृष्णा ने अपने भक्त का वचन पूरा करने के लिए उसने एक पहिया को उठाया। धृता रत्न चरण अभ्या चला दुगर, ऐसे चला, इतना गुस्सा कर चला। वो लीला में दिखा रहे गुस्सा नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ति कर रहा है कि he loves भीष्म पितामह so much. भीष्म पितामह is in the form of दास्य भाव। और वास्तविक में भगवान ने पूछा था पितामह को कि अगर तुम चाहते तो तुम कौरव पांडव के बल आ जाते। बोले कृष्णा अगर मैं पांडव के तरफ आ जाता तो युद्ध ही नहीं होते। अगर हम if I would have come this side, महाभारत नहीं हो, फिर तुम्हारा वो जो पार्थ सारथी का रूप हम नहीं देख पा। मैं उस बल इसलिए था क्योंकि मुझे रूप लुभाता है, मैं देखना चाहता था। देखो भीष्म पितामह वो लोक में गया जिस लोक में सदैव कृष्णा पार्थ सारथी है, क्योंकि he wants to see Krishna in that form। तो इसी तरह शास्त्र में वर्णन किया गया। और कृष्ण भगवान ने तुरंत पहिया उठा और तुरंत पहिया उठाकर घोड़े मारने के, जैसे बोले शेर हरि रिवा हेतु इमं गतोत्रया, हरि भागता है हाथी को मारने के लिए। हाथी और बताया गया है शेर में जब लड़ाई होती कौन जीतता है? हाथी और शेर में लड़ाई होगा कौन जीतेगा? शेर जीतेगा। कहा है काय शेर जीते? शेर में ज्यादा ताकत कि हाथी में? हाथी में ज्यादा ताकत, लेकिन काय शेर जीते? शेर ही जीतता है। शास्त्र में उसका कारण ये दिया गया है कि शेर जो है प्रजा पक्त करने के लिए वो साल में एक बार अपनी स्त्री का संग करेगा, एक बार वंस। हाथी नहीं, हाथी को पकड़ने के लिए हथनी को उधर धरो, बीच में गड्ढा खोद दो और तुरंत जाला भीगो। हाथी जैसे हथनी देखी भाग जी, शेर नहीं भागी। शेर एक साल में वंस अपॉन अ टाइम संग हो गया, फिर कोई भी शेर नहीं है। आई डोंट लव यू, गॉड ब्लेस्ड, यू गो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो शेर बुलंद रहता। मैंने क्या कि मोहम्मद जो लड़ाई बॉक्सिंग करते थे वो नहीं, मोहम्मद अली, मैंने उसका एक बार उसका बायोडाटा पढ़ रहा था। बताया कि वो लड़ने से पहले 6 महीना वो किसी ना स्त्री के बात सोची, ना स्त्री के संग करी, और उसके मुक्का में इतना ताकत है। और इफ यू रीड द ब्रह्मचारी बुक, even one drop of swam got 60 drops of blood। Can you imagine कितना शक्ति है? और जो वो शक्ति को दुरुपयोग नहीं करेगा तो वो शक्ति वापस बुद्धि में जाकर उसकी बुद्धि एकदम तेज शक्तिशाली बन जाती है। That's why the mind is such a powerful। तो आज कृष्ण भगवान एक शेर की तरह ऐसे जा रहा है, धरती कांपने लगा।
क्यों धरती कांपने लगा? क्योंकि धरती भगवान की पत्नी है। वो कह रही प्रभु तुमने कसम खाया है, और भगवान की शॉल यहां से गिरता है। क्यों शॉल गिरता? भगवान बोले धरती तू शांत हो जा, तू चिंता नहीं कर। वो शॉल इसलिए गिरा तो उसको आश्वासन, ये भगवान की भू शक्ति है। वो भी ट्रबलिंग, वो भी कृष्ण अपना वचन तोड़ देगा। कृष्ण ने शॉल गिराकर आश्वासन दिया, डोंट वरी, ही इज माय प्योर डिवोटी, ही इज माय प्योर डिवोटी। और तुरंत जब चक्र लेक पहुंचा, भीष्मदेव हाथ जोड़ लिया, इज रेडी इन फ्रंट ऑफ हिज लॉर्ड। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। आज भीष्मदेव अपने इज ओन, क्या कहते हैं शास्त्र में कहा गया है, द एरोबैट्स, मतलब सर सैया पे है। सर मतलब बाण को कहते हैं। उसके सैया पर वो पड़ा है, सब बाहर निकला हुआ है। एंड ऑन द 10th डे भीष्म पितामह वाज डाउन, और उसको कोई नहीं डाउन कर सकता था। उसके पास बताया गया वरदान भी इच्छा मृत्यु का। तो कृष्णा और अर्जुन स्वयं गए थे उनके पास, और उसने बताया मेरा मृत्यु सिर्फ एक कारण हो सकता है, द ओनली कारण इज अम्बा के लिए। ये काशी के 3 रानियां थे। अम्बा जो सबसे बड़ी थी, अंबिका और अंबालिका, काशी के लड़के। तो भीष्म पितामह तो अब राजगद्दी बैठेगा नहीं, तो वो सत्यवती 2 लड़कन हुआ, विचित्रवीर, विचित्रांगद। विचित्रांगद वो एक लड़ाई में वो मारा गए थे। तो उसके बाद विचित्रवीर बहुत छोटा था। तो उस समय बताया गया विचित्रवीर को गद्दी पे बैठा, लेकिन भीष्म पितामह वाज अ कमांडर, और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और उस समय काशी में जब स्वयंवर रचा गया था, तो भीष्मदेव को बताया नहीं कि भीष्मदेव गया और स्वयंवर में सब राजाओं को परास्त करके 3 रानी को कब्जा कर लाया। लेकिन जब 3 आ गए, तो उसमें से एक अम्बा ने कहा मैंने अपना दिल तो सल्ले को दे दिया कि राजा, इसलिए आपने ऐसा क्यों किया, मेरे को क्यों हरण कर लाए? तो भीष्मदेव ने अम्बा को छोड़ दिया, और अम्बा गया वापस। जब अम्बा वापस चला गया, सल्ले बोला मैं किसी का छूटा नहीं लेता, क्योंकि वो भीष्मदेव से हार गए थे। अब वो स्वीकार नहीं, क्षत्रिय लोग ऐसे ही रहते, मान प्रतिष्ठा पे ये लोग जीते, प्राण चला जाए लेकिन मान नहीं चाहिए। और उसने स्वीकार नहीं किया अम्बा को। अम्बा वापस आया, कहा भीष्मदेव तुम मुझसे शादी करो। उसने बोला मैं कभी नहीं करूंगा, मैंने प्रतिज्ञा लिया है। उसने परशुराम के पास गया, भीष्मदेव के गुरु परशुराम भगवान का अवतार। परशुराम ने कहा भीष्मदेव शादी करो। उसने बोला गुरुदेव मैं नहीं कर सकता, मुझसे युद्ध करो। 23 डेज का युद्ध हुआ था यही कुरुक्षेत्र में, और परशुराम भी नहीं हरा पाए। उसने क्षमा मांगा अम्बा से। फिर अम्बा घोर तपस्या, 10 साल तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में शिव जी से वरदान प्राप्त किया था कि मैं भीष्मदेव को बताया गया है उसका विनाश का कारण, तो ये वरदान प्राप्त कर लिया। और द्रौपद उस समय उसके पास बेटा नहीं था, तो वो भी घोर तपस्या किए थे, तो उसको जो मिला था वो बेटी थी। वो बेटी थी, उसने बोला बेटी मुझे मिल गया, मुझे बेटा चाहिए। तो तपस्या के कारण से बोला ये बेटी फिर बेटा मत ली। फिर आगे चलकर और लीला आएंगे, तो ये बताया गंधर्व लोग इसको फिर जो लड़का है वो लड़की उसको लड़का बदलते हैं। और विश्वदेव जानता है ये लड़का नहीं लड़की भी नहीं है, और ये अम्बा है, और अगर वो आकर खड़ी हो जाए तो मैं अपना अस्त्र शस्त्र। तो वही अम्बा को अर्जुन के रथ पे चढ़ाया गया ये 10वां दिन का लड़ाई में। और जब वो आकर खड़ी हुई, अर्जुन को हटाकर जब अम्बा आगे आई, तो भीष्मदेव के पास धनुष बाण था, वो नीचे धर दिया। उसी समय अर्जुन ने वार किया और पितामह का पूरा सरसैया पर सुता दिया था। इसलिए बोलने का प्रयास, ये सब के पीछे अगर कोई था तो हमारे कृष्ण ही था, क्योंकि वो वेदांत समातुता नहीं, वो सबको जानता है, भूत भविष्य वर्तमान। और जब कृष्ण तेरे साथ में, तो फिर वो जानता है कि बलि को अब अभी क्या होगा 10 साल में।
He knows everything. You just surrender to him. कोई नहीं जानता है, ओझा लोग भी नहीं जाने, इसलिए इधर उधर मत भाग, तुम उसके शरणागत हो जाओ. He knows in and out about our life. कहाँ पर हमारा ऑब्स्टेकल्स आएगा, कहाँ पर हमारा, इसलिए हम उसके चरण पकड़ते हैं. जैसे एक बच्चे था, बच्चे को जब लेटर ले रास्ते में जाए, सब मछली लोग रोए लगे, पता नहीं आज बचे कि नहीं हो, सब जाला फंस जाएगा, सब चिंता में. और छोटी मछली नाचत जाए, उड़ते जाए, सबने बोला एक छोटी तुम जाने भी बच्चे आई, ऊपर बत्ती लेके अभी चाल फेंकी, बोले मुझे कुछ नहीं कर पाई. ये कैसे तुम्हें नहीं कर पाई? अरे हाथ तो दो उसकी. बोले जैसे ही उसके गोड़ के नीचे चला जाए, वो तो दूर दूर जो है उड़ों जाल में है, अब तो गोड़ के नीचे हमें नहीं पकड़ पाए. जो कन्हैया के चरण तले चले जाए उसकी कुछ नहीं हुई. समस्कृता ही पादा पालवा पलवम महत्पदम पुण्येशो मुरारी. जो मुरारी के चरण तले उसकी कोई बाल बाका नहीं कर. So we are so fortunate by the mercy of Srila Prabhupada, Srila Gurudev, that we have attained the lotus feet Krishna जी का चरण पकड़े, मजबूत से पकड़े, निडर बनकर. चेहरा में कभी एक खरोश तक बताएगा चिंता नहीं होना चाहिए. तो तुम कैसे भक्त हो भगवान का? तो चिंता लेकर बैठे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा भी अच्छा होगा, उसको होने दो, वो है तेरे साथ में. बस हाथ में हाथ धरो, मेरे कन्हैया मेरे साथ में, चलते रहो चलते रहो चलते रहो. इसलिए दृढ़ गण चरण तेरो भरोसा, दृढ़ गण चरण तेरो भरोसा, दृढ़ गण चरण तेरो भरोसा. ऐसा विश्वास. श्री वल्लभ नख चंद्र छट बिना सब जग माही अंधेरो. अगर सूरज नहीं रही, चंद्रमा नहीं रही, ये ब्राह्मण कैसे सोचिए. ऐसे दृढ़ गण चरण तेरो भरोसो, दृढ़ गण चरण. एक सूरज नहीं निकली, कौन हालत रही ब्राह्मण की. ऐसे गोविंद मुझे आपके चरणों पे पूरा विश्वास है. बस भगवान वही चाहते. ओ हरि नो हरि छे मम रक्षक या भरोस मम जाय नहीं, जय मम कर से दे मम हित नो, या निश्चय बदलाए नहीं. इसलिए तुरंत भगवान ने अस्त्र उठाया, दौड़े मारने के लिए, लेकिन मारने के लिए नहीं, वो अपने भक्त के वचन को पूरा. अपना मान टले टल जाए, भक्त मान न टलते देखा, भक्त मान न टलते देखा. अपना मान भगवान घटा देगा. इसलिए अर्जुन से कहते शिप्रम भवति धर्मात्मा सस्भक्त शांति निगचति उद्धया प्रतिजना नामे भक्त प्रणश्यति. एक उत्ति पुत्र अर्जुन तुम प्रतिज्ञा लो कि कृष्ण का भक्त कभी नाश नहीं हुई. अर्जुन से कहते बोले अरे तुम ही प्रतिज्ञा ले लो. नहीं हम नहीं लेंगे, हम बहुत जगह अपन वचन के भंग कर दिया, और हमारे भक्त कर प्रतिज्ञा ले तो अपना सर्वस्व दे दूंगा, उसको मैं भंग नहीं होने दूंगा. इसलिए विशेषता पूर्वक यही पर है कि भक्त मेरा मुकुट मणि, मैं हूं भक्तन कर दास. मुकुट लगा दो ना तो सुंदर लगेगा, लेकिन उसमें मणि है जो पूरा मुकुट के सुंदर करे. वो हमारे भक्त लोग है, ज्वेल जो हमारा आगे है. क्या आप लोग उनके बताए गए ज्वेल्स हो? सुबह उठकर जल्दी भागते दौड़ते आते हो, उनके लिए कुकिंग करते हो, उनके लिए भोग बनाते हो. यही सेवा और ये कथा ही तुम्हें हृदय में भगवान की अनुभूति लाई. अगर जो कथा श्रवण नहीं करता है वो कृष्ण प्रेमी नहीं हो पाएगा, और जो सेवा नहीं करता है वो हृदय में अनुभूति नहीं. मरने से पहले वो अनुभूति होना चाहिए, अपरोक्ष रूप से वो कृष्ण का रियलाइजेशन हैज टू कम इन योर हार्ट. एंड व्हेन दैट हैपेंस देन यू बिकम फियरलेस. मृत्यु से तुम अभय हो जाओ. इसलिए विशेषता पूर्वक यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी बड़ी विशेष बात लिखे कि भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए स्वनिगमा अपहया मत प्रतिज्ञा रताधिकर्तुम अपप्लोते
रतस्ता धृता रक्त चरणो अभ्याचला दुगर हरे रेव हेतो एवं गतोत्रया। भगवान अपने भक्त के लिए सब प्रतिज्ञा को छोड़ देते थे। इसलिए आप विशेषता पूर्वक यही देखोगे कि विष्णुदेव अपने पिता के प्रति कितना लॉयल था और अपने भाई को गद्दी बैठा रहा। विचित्रवीर को 2 पत्नी हुए, अंबिका और बालिका। फिर बताया गया इनके संग में तो था लेकिन बब्बा नहीं हुए थे, एक बब्बा नहीं हुए थे। तो एक दासी बताया गया, अंबा बालिका की दासी संज्ञा है, तो 3 रानी थी। तब सत्यवती ने वेद व्यास को बुलाया अपने पुत्र की संतान नहीं हो रहे। तब बताया गया उनके दृष्टि से फिर 3 रानी का संतान हुआ, अंबालिका, अंबिका और एक दासी। दासी पुत्र के बताया कौन हुए थे? विदुरमान। और बताया गया इन दोनों रानी से एक हुए थे पांडु और दूसरा धृतराज। फिर पांडु मर गए तो धृतराज बैठा, अंधा है लेकिन सब विश्व पितामह करते थे। लॉयल, ही वाज सो लॉयल टू द व्यास। और बताया राज जो गद्दी है उस पर कितना लॉयल था। आई विल बी द 7, I will never become the king. And this what really pleased him, how loyal Bhishma Pitama was. That's why he is already liberated personality and he came as a great warrior. और भगवान के लिए उसने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक जो रोल है उसने जो निभाया है, बताया गया विशेषता पूर्वक। It's unparalleled to match with anybody. Just like गंधारी ने शादी के बाद में वो भी पट्टी लगा ली, पति नहीं देखेगा मैं क्या देखूं। लेकिन the point is she was very loyal, she was very loyal, but उसकी पट्टी नहीं चाहता क्योंकि असली बात आकी ने तुम्हारे पास तो आकी है। तुम सके देखे कि वो लोग द्रौपदी नगन करे, एटलीस्ट तुम आकी से देखे तो बता कि ये पतिदेव डांटो लड़कन के, थप्पड़ लगाओ। लेकिन वो मोह है और मोह के पतिव्रता स्त्री वो भी गंधारी अंधी हुई। तो दिस इज नॉट राइट। बट द अदर वे अगर आप देखोगे कितना लॉयल्टी दिखाई, जस्ट लाइक दे वर बोथ पैरेलल, विष्णुदेव एंड गंधारी। सो श्रीमद् भागवतम so beautifully describes the Lord Krishna. He becomes so pleased with his devotees and for the pleasure, for protecting Arjuna, and above all, when Krishna is in the rath, अर्जुन के कोई बाल विवाह का नहीं करते। आपका शरीर जो एक रथ है उसमें भी कृष्णा है, तो आप क्यों चिंतित हो रहे हो? हर स्थिति पे he is with me, मुझे चिंता करने के काम नहीं। आप और हमें खाली चिंता करना है कि मैं उसका शरणागत हो जाऊं। That's why when we serve the Vaishnavas, Krishna becomes more pleased, because भगवान कहता है भक्त मेरा मुकुट मणि जैसा है, मेरे मुकुट को सुंदर कर देता, मुझे सुंदर बनाता मेरा भक्त। Just like we come and we bow down to the Lord. But मुझे ये बताओ, जिस भगवान का आगे आप नमन किए उस भगवान को सपराया कौन? उस भगवान को कपड़ा कौन पहनाया? उस भगवान को आरती कौन करी? वो भगवान के भोग कौन लगे? It's the devotee. लेकिन उसको हम लोग धन्यवाद नहीं मांगित करे, आप लोग उसके लिए नहीं बोले थैंक यू सो मच, कृष्ण को इतना सुंदर से किया। शिक्षक गुरु के काम है ले जाओ दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु फिर वापस बोली वैष्णव सेवा जाओ वही सेवा करो, लेकिन पकड़ नहीं पाते हो। इट्स लाइक आदान प्रदान, वी टेक द डिवोटीज टू उसके लोटस फीट, वी विल गो बैक एंड सर्व देम, वही लोग के जग सेवा करो। व्हेन यू सर्व देम देन द नाम रुचि विल बिगिन, and with this नाम रुचि you will attain my love and you will see me in every living entity। तब तुम्हारे में जीवन दया आई and you'll be happy to see me everywhere। खाली ये नहीं कि ये कृष्ण यही है, the same Krishna when you go out you must see Krishna in every living entity। same Krishna has to be seen everywhere। this is called उत्तम दर्शन। एक कनिष्ठ दर्शन है, फिर माध्यम दर्शन है, एक सपना में दर्शन देगा, एक विग्रह में दर्शन देगा और एक सर्व व्यापक रूप से यही तुम्हें दिखाएगा, तब बताएगा हमारा दर्शन परिपूर्ण होगा। सो टुडे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोक एंड आई विल रिक्वेस्ट ये जो 12 श्लोक है 11 श्लोक है, ट्राई लिटिल बाय लिटिल। आई रिमेम्बर इस श्लोक में कब सीखा था, मेरा एक ट्रिप थाईलैंड का था। सो आई हैड अ 3 months ट्रिप टू थाईलैंड फॉर माय स्टडीज। तो थाईलैंड जब मैं जा रहा था तो तुरंत
मैं प्रण करता हूँ, विष्णु स्तुति मुझे सीखना। बस मेरे टेबल पे वो जो क्या कहते हैं एयरपोर्ट प्लेन, एंड आई वाज सिटिंग विद माय बुक इन फ्रंट, जस्ट दिस पेज दैट पेज दिस पेज, 11 घंटा का ये बगल में तो पूरा फिल्म देख रहा, ये देख रहा, वो देख रहा है, ये पी रहा, वो पी रहा है। मेरे पूरा 11 घंटा उधर से 11 घंटा, तो ये अंदर से आगे इतना मजा लग रहा है और इसके आनंद भी लूट रहा हूँ, एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का। तो कितना बड़ा स्तुति है कि विष्णु पितामह इसमें इति मतिर, मेरा मन जो है अभी विवाहित नहीं, मेरे पास एक कन्याकुमारी लड़की है कृष्ण, शादी नहीं हुए, आप शादी कर दो कृष्ण। तो अर्जुन को पितामह बोले कब शादी करी से जो लड़की हुई? तो अर्जुन कृष्ण ने बोला ये वो लड़की की बात नहीं है, ये और गहरा लड़की की बात करे। तो पितामह से पूछो, बोले बताइए। बोले नहीं अर्जुन, मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ, अभी कन्याकुमारी है, मैं इसको देना चाहता हूँ कृष्ण को, दूल्हा राजा के रूप में कृष्णा है, मेरा मन ने इसको स्वीकार किया। तो पितामह कृष्ण ने पूछा, तुम बोले अपने लड़की से पूछो मुझसे शादी करे मांगी कि नहीं? त्रिभुवन कमलम कमलवर्णम रविकर गौरवरम वरमदाने। बोले हे कृष्ण, तुमसे सुंदर त्रिभुवन में कोई है ही नहीं, सबसे सुंदर है जग में दो नाम, चाहे कृष्ण को या बाकी सब छुचुंदर वाले हैं, तुम ही सबसे सुंदर हो। इसलिए बोलने का प्रयास ये रह जाता है कि मेरा मन उस पर आकर्षित हो गया। सबसे सुंदर है त्रिभुवन में, दैट इज कृष्ण, नोबडी इज मोर प्रीटी, मोर ब्यूटीफुल देन कृष्ण। हमें याद है, मैं जब स्कूल में मेडिसिन पढ़ता था तो एक लड़का था सिंगाना का, तो सिंगाना का लड़का था, तो एक लड़की से प्रेम हो गया चाहते। अब सिंगाना से उतना एक्सपोजर नहीं मिला था बेचारा, फिर साइड लाभ हुआ, और जब लाभ होने के बाद में अरे बाबा रे बाबा, अब इतना आगे कि लड़की से तुम शादी करो, उसके पापा क्या बनाया गया कि तुम आओ, स्थिति थोड़ा गंभीर हो रहा है। तो स्थिति गंभीर है, पापा पहुंचा, बिल्कुल जी हुई है, जो बताओ आपकी शादी करे पड़ी आओ। बोले बेटुआ कहाँ कर लिया, तुम्हें पढ़े नहीं जा रहा? बोले पापा वही गए कली कौन ची ना। बोले लड़की में कौन ची देख लिया ना? बोले केली बार बोले आगे गिरा रहा। अरे बोले तो बरुआ काट के लेकर गोदाम का लेकर ही हुआ। तो बोलने का प्रयास नहीं जाता है, अरे बाबा ये मन जो है सबसे सुंदर वस्तु खोजता है। और याद रखना, छोटा में ये प्राणी मात्र जो जीव है, वो जैसे जैसे शरीर बदलता है उसका पात्र भी बदलेगा। जैसे अभी ये लोग है, अभी ये लोग ये देखेंगे छोटा ये लोग भी मृदंगा बजाई, करताल बजाई, जितना खिलौना लोग तो ये लोग खेले। लेकिन जैसे ये लोग 17 पे पहुंची, अब ये लोग गुड्डी का खिलौना नहीं, असली गुड्डी संगे खेलो। गुड्डी लोग वो गुड्डी देखते ही लोग, अभी तो ये लोग गुड्डी लोग देखे भी नहीं मांगे, क्योंकि इनका शरीर बदली में तो इनका विचारधारा भी बदली। फिर उसके बाद में शादी हो गया, नेटवर्क का शादी हो गया, अब बीबी से प्रेम थोड़ा कम पे, अब लुलु कृष्णा हृदय, अब कृष्णा हृदय, टाइम इज गोइंग विद कृष्णा हृदय। तो हरि विलास ने बोली मेरा टाइम, ओह सॉरी अबाउट इट, आई एम सॉरी अबाउट इट, इट्स ऑल अबाउट कृष्णा हृदय। तो कृष्ण अब एक और आज तो अरे बाबा फिनिश दैट लव, वो पात्र फिनिश चेंज। अब इनके लगे फिर कुछ दिन बाद ये लोग से भी बना थी, फिर देन ही गोस विद द मनी, फिर शरीर में कुछ रोग आएंगे, देन विद द बॉडी अभी ठीक है, अभी इलाज ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लगा इसे ठीक है। तो पात्र इज ऑलवेज चेंजिंग, यानी ऐसा पात्र बनाओ जो चेंज करी पड़े नहीं। आप पत्थर जब भी नदी में भी गए गोला बने, कब तक बनी? जब तक किनारा नहीं पकड़े। ऐसे कहने ऐसा पात्र के ला लो कि तुम्हें कभी बदली नहीं करे पड़े, एंड दैट इज Shri Krishna. When he comes, you don't have to change. Otherwise, we will be keep on changing. But bring Krishna in our life, you don't have to change any time. आप छोटा से, just like Mirabai, from young age, middle age, until the last breath, this has to be there as Krishna in our heart. And therefore, the Srimad Bhagavatam very nicely tells about Bhishmadev's true love towards Krishna and the loyalty that he had, that we salute his devotion
and his love towards Krishna. And now he went to the planet where Krishna is always a chariot driver. For devotee loves that because Krishna is the order giver, but now he is taking the order. Seno Rubbi और Madhya Ratam स्थाप है मेरे सेना को लेकर चलो वहाँ. And Krishna is sitting down and is listening to it. This is the beauty of Krishna. This is such a beauty. क्योंकि भगवान बोले is omniscient, omnipotent. But look at our Krishna. He is ready to be a chariot driver. इसलिए जाते जाते सच्ची प्रेम सच्चे प्रेम के बस अर्जुन रत क्यों भूल गए ठकुराई सच्ची प्रेम सगाई सच्चे सच्चे प्रेम सगाई राजसूय युधिष्ठिर कीना बड़ा था कृष्णा का. कृष्णा उसको हाथ जोड़कर पीछे पीछे भैया भैया मुझे पत्थर उठाने के काम मुझे देना. राजसूय युधिष्ठिर कीना उठाई सच्चे बस सच्चे ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपीन नाच नचाई लायक नाही सुर को इस कहाँ लगी प्रीत बढ़ाई सच्ची होती रताधिकार तुम अवालोके प्रीतारत शरण अभ्यास हरि बह तुम गतोत्रय सच्चे होती प्रेम सदा. Vishwadev is looking such a great. Can you imagine this is Granth Raj Srimad Bhagavad and Vishwadev के महाभारत के जो वो फल घड़ी भगवान के साथ उसको लाते इसमें डाला गया प्रेम पुरुषार्थ. This is how the love is. माता कुंती के प्रयास तो बोलने का प्रयास. Krishna wants to teach something that the जो my lover रहते हैं वो किस हद तक जाते हैं मुझे सर्वस दे देते. Any question? Any question? किसी के पास anybody? Oh, any doubt? Today's class, any doubt? No doubt? Yeah, because Bhishma Pitama, he इच्छा मृत्यु वरदान था.
तो भागवत गीता अकॉर्डिंग टू चैप्टर 8 योगी लोगन भगवते कब बताया गया है उत्तरायण आए तो उस समय बादल क्लियर रहता है, दक्षिण में बादल रहता है, कच रहते हैं, मलिन रहता है, उस समय प्राण नहीं छोड़ते। तो उत्तरायण में जब प्राण छोड़ोगे तो वापस नहीं आते। दिस इज हाउ द योगीज लिव। बट फॉर डिवोटी ही कैन डू एनीथिंग, डजंट मैटर, दिस कृष्ण इज ऑलवेज विद यू। बट सिंस ही वाज अ योगी आल्सो, so he knows when to leave the body. So he was there for 51 days on the arrows of the, वो उस पर था, लेकिन उसको उतना, क्योंकि he was always in deep observation of Krishna. और फिर स्वयं उसकी मृत्यु के समय कृष्णा खड़ा है, तो लोग बोले अरे कृष्ण को इतना बाण नहीं मारा था जब नहीं, कृष्ण का बॉडी इज ऑल इम्यून, इज ऑल स्पिरिचुअल, जैसे आत्मा स्पिरिचुअल है ना। चिंतन्ति शस्त्राणि न ददाति पावका न क्लेदयन्तु मनुष्योचिति मा, अस्त्र शस्त्र खाते नहीं सकते। तो कृष्ण का होल बॉडी इज लाइक दैट, होल बॉडी। हमारा आत्मा खाली इससे, बॉडी नहीं है हमारा। बट कृष्ण का नो, बिकॉज ही इज अ वॉरियर, ही वांट्स टू सी कृष्ण इन द ब्लड फॉर्म। बट जो दोज हु आर डिवोटीज दे नो इज कृष्ण, कृष्ण को कुछ नहीं होता है। So that's the beauty of learning all this, understanding the whole concept, and you will really enjoy it by more and more getting it deeper. प्रभु, Yeah. तो विषम पितामह भगवान का सामने से शरीर छोड़ा, धाम चल गया। तो अगर एक भक्त शरीर छोड़ता है, भगवान का धाम चल गया, कैसा हम लोग कौन सा कोड करके बताएंगे? कोई हम लोग से पूछा, अच्छा ये व्यक्ति ये भक्त शरीर छोड़ दी, ये भगवान का धाम चल दी, बट तुम्हें कैसा पता लगेगा? हमें कैसे पता लगेगा? तो just you look at the service that he has done. Iyayasya haridas गिरस iyayasya haridas निकलिस अवस्था सु जीवन मुक्त सवचन मनस गिरस वचन, मन words मनस गिरस वचन, मतलब उसके words, के deeds and his action, they are totally surrendered to Krishna. If he's there, you don't have to tell, he's already liberated of this world. Already liberated, his service declares. And the realization that he is having Krishna, you can see him in the Kirtan, you see him in the Bhagavad Gita, उसका रुचि, उसका रति। तो भीष्म पितामह ये सब स्तुति में अंत में रति बोलेगा, सब जगह रति। You will say मेरा रति हो जाए कृष्णा से, मेरा रति हो जाए। So our devotee, when he serves, he is enjoy. He has to enjoy. In every service, when you do deity worship, he should be enjoying. When I do preaching, I enjoy. Because I'm with Krishna. I enjoy with Krishna. I try to, whatever I give, I deliver. I make sure that I also enjoy. मैं खुद enjoy करता हूँ. Because it's beautiful. Every morning I study, I read. और जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं खुद उसकी आनंद लेता हूँ। तो ये आनंद मरने के बाद नहीं है, आनंद तो जीते जी। Just like yesterday when the kirtan was happening, और भले काजल रखे, but I could see the devotees were just relishing it. इससे बड़ा मुक्ति कहाँ है? मरने के बाद में भी गोलोक धाम में क्या करोगे? आप नाचोगे। But when Guru's mercy come on you, then you will become a true lover. Because वो additional कृपा डालेगा, और वो कृपा से यश प्रसादत भगवत प्रसादे, यश प्रसादे नागति कुतोपि, the mercy of the Gurujan, your senior devotees के जो कृपा है, उससे भगवान को तुम्हें मिलेगा। अपने नहीं, not you cannot do it yourself. You need the mercy. Like Narad Muni, when he was given permission by his guru to take my prasad, means he wants to give the kripa. और जैसे एक बाइट खाया, उसके शरीर में रोमांच आ गया। So the whole gist when we are doing Harinam, Kirtan, Bhagavad, evam prata swa priya naam kirtan jat anuraga druta chitte, heart has to be melted. हंसती रोदती रोवती गायती, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी लूटेगा, लेकिन इस अनमंडल इस पागल हो गया। तो जिस दिन पागलपंती चढ़े लगे, समझ जाना हम अलग जगह पे पहुंचे लगा। तो बोला only you share with the devotee, don't share with everybody. तो मुझे कुछ होने लगा, अब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगे। ये जो संसार मुझे अच्छा लगे, तब नहीं अच्छा लगे। That means you are coming in a different stage. And gradual, this devotional service gradually you will come, you will fit. It's like आपके बैंक में पैसा gradually fill हो,
Okay, 100,000, 200,000, 300,000. So gradually this same thing happens in our life. एक ecstasy जो है हम लोग feel करेंगे. And as you go through the process of devotional service, तुम अपने रोएंगे. जब तुम रोएंगे तो मजा भी लगेगा. गोपी लोग जब रोते हैं तो लोग बोलते उधो नहीं बोला कि नहीं रो. वो जानते हैं ये लोग सही कर रहे हैं. और रो, you'll be more happy. उनके रोने में भी मजा है. कि नहीं होगी? कोई संसार के लिए रो इसके मजा लगे? बिल्कुल नहीं मजा लगे. पर भगवान के लिए रो मजा लगी. हंसती रोदती हंसे भी मजा लगी, रोए भी मजा लगी. अरे ये अलग ब्लिस है. So this is the whole gist. I know I have so many devotees who are with me. I know they are back to work. I know my heart can tell that he is back to work because he was so dedicated. Like there was one devotee Kamla Das. He used to bring whole Siberia के open गाड़ी में भरकर like 10-15 जन के भर के लेके ही ले जाइए. So like he's totally dedicated to service. And he's chanting, his tilak is there, every time you see him, he's chanting the holy name. You all are doing a great service. Now, yesterday night you were in the Katha, tonight so this means you are totally absorbed. आप नहीं once upon a time वाले. You are already every day you are getting absorbed. And this gradually devotional service is conquering, changing your whole heart. पूरा heart को बदल रहा है. धीरे धीरे कथा क्या कर रहा है? कृष्ण अपना पूरा रूप से अपना जगह बना लिया. And when you leave this body, you don't have to worry. You are already liberated. This is the whole gist of devotion. You have to feel ये जड़ और चेतन. शरीर जड़ है. Okay? It's a matter. But the soul is चेतन. तो इसका एक ग्रंथि बना है. But ये ग्रंथि मिथ्या झूठा है. It's not true. But सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा तुम ये ग्रंथि खोल पाओगे. तो ये भक्ति मार्ग में जो आप सभी लोग हैं, एक दिन ऐसा ही तुम फील कर लोगे, आई एम सोल, आई एम नॉट द बॉडी. मैं इस शरीर से अलग चीज हूँ. You will feel yourself, and it will feel. I know I've been with so many exalted sannyasis, and I know how when you do all this service, you will just feel that. You will feel. You'll be more happy, not the body. When you're in the body, big fight, big tension. And the ego comes and stands in front of you. When you know you're not the body, there is Krishna. No problem. When you're in the bodily stage, the fear will come and grab you. Then if you're not the heart, you are Atma. तो ये ना जाए तो मेरे दैवा कदाचित मैं भूता भविता न भूय आजो नित्यस्य. What is the tension there? कोई टेंशन नहीं. टेंशन सब बंद करना. मन को कृष्ण के चरण में ले जा दो, फिर चिल करो और हैप्पी रहो. अच्छी करो, चिल करो और हैप्पी रहो. Okay? Anybody else? Backside? Any question you have? No? No. Gopi, you don't have anything. Swana, nobody? No. Good night. Brah, hey. Thank you so much for the great service. Guru Maharaj Ji, reception, everything was so beautiful. And yesterday night, everybody enjoyed. Thank you so much for a wonderful service. Just continue doing this service. You feel more happy. I'm telling you. When you serve Krishna, you will be more in bliss. And this bliss will be eternal yours. कोई छीन नहीं पाए. तुम्हारा है, सदैव तुम्हारा है. उसी के साथ साथ में चलो प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर